So I'm logging in. So this screen, again, the screen which is coming right now, it is again fully customizable, fully configurable according to your requirement. Okay, we configure these screens. Okay, so again, your company banners, your site banners, everything can come. Your company, your name, company logo can come on the top. Okay, so this is completely configurable according to the requirement you have. Okay, when we do the implementation, we do all these things. Plus, right now it is coming whatever documents, let's say someone has raised, and we have a approval system. So we have a approval system. So it can go up to 5 levels of approval. For example, one guy has raised the sales invoice, or let's say one guy has raised the sales order or the PO. It can go. It has to go to, let's say, his again top authority or again a manager level. So again, this is the screen where, let's say, I'm getting my few documents which I have to approve. And when I, let's say, open this document through hyperlink, it can open and I can see the document and I can do the approval or reject whatever I have to do. Okay, plus this can be done through email integration as well. So let's say once I raise the PO to my supplier, it has to go to you. Okay, so it will come to your email box, to your inbox, wherein you just open the link and again read the content, and you can raise or you can approve it. Okay, so all these things can be done here. Then we have a dashboard again, which is again configurable according to your requirement. I'm opening the particular. Okay, you are talking to me. Yes, sir. Tell me, sir, please. Last. Okay, okay, okay. Just a minute. So I was opening the, I had opened this. Okay. So I was just saying that, let's say I was just showing it for the, just for example, let's say let's, I have raised the sales order and it has come to you for an approval. Okay. So when you click the hyperlink, again, the screen will get opened. You can read it and you can approve it or you can reject it, whatever. So again, this screen is whatever fields you are seeing, it is fully customizable according to the requirement you have. Let's say we have so many fields, you want, let's say, lesser fields there, or you want to add few other fields. We do this at the time of implementation. Okay, so right now the sales order screen is open, wherein all these again headers are there. Then we have again line items wherein whatever for whatever items we have got the order. Okay, so these are there. Is it okay? Shall I move? Okay. So after this, I was just showing the dashboard because you said you were talking about purchase. So again, this is again completely configurable according to your requirement. So again, as the demo dashboard, what it is showing today is how many PO we have raised in last 1 week, how many POs we have raised in last 1 month, how many POs we have raised last year. Okay, so again, it is showing purchase value by group. Okay, recent orders by purchase value, how many orders we have given by again purchase value. Then top products purchased by value. So these are a few examples again we have shown in the demo. Top supplier, who is the top supplier for me in terms of purchase value. Okay, so this is again can be configurable according to your requirement. Okay, but now if I, let's say, go to a procurement workflow. Okay, so again in every module, Ankushi, there are few sub modules. Okay, so the look and feel or the usability is similar to every module. So we have masters for every module. Then we have UDF. UDF is our USP. That is called user defined fields. For example, let's say once we have implemented the system at your place, and later on, let's say 2 months down the line, 6 months down the line, 1 year down the line, you want few fields need to be added. So you yourself, or let's say the person who has the right to add the fields, you yourself can add the field using this UDF, user defined field. So you don't have to come to us, okay, to so that we develop it and then give it to you. Rather than that, you can again make your own fields. Then we have transactions where all the like transactional entries happen. Then on the base again on the basis of these transaction entries, we have the reports for that module. So let's say if I talk about
the transaction entries. Okay. Or before that, I can let me just take it to item master first. Just so this is the item master, wherein for every item, again we maintain the item code, okay, which is a unique code for every item. Then we have item name, okay, part number, drawing number, inventory class, okay, whether it is A class, B class, C class, so that we can do the ABC analysis later on. Then unit of measurement, in which unit you take the material in, okay, and then alternate unit of measurement we have, okay, item type, okay, whether it is an inventory item, asset item, or a service item, okay. Then item description we can do, item category. So again, for every item we have three groups or three subgroups, so that the reporting should be very clear. For example, you have one item category. In this item category, how many items are there? So if you want to see the report category wise or a group wise or a subgroup wise, so you can see the different reporting for items in different categories. Then in which store you take this material in as a default store. Otherwise, you can maintain multiple stores. Just come again, sir. Oh, this is for when you do the imports and all. Import. जब आप import करते हैं बाहर से, तब this comes. SWS is social welfare surcharge. When you import something from outside country, then for bill of entry, you will find that this charge is the government is basically charge for the social welfare surcharge. This is a kind of tax. So again, that like what I told you is, let's say you are not into import and all, so we can again we can remove these fields, whatever fields are not in use. Okay, for you, only those fields will come which are in use for you. Okay. Hello. Okay. So then for every item we can maintain the reorder level or a minimum level. Okay, so that जहाँ पे reorder level पे item पहुँचता है, the system will give you an alarm or a notification. Or what we can do is automatically the intent can be raised, so that it should go to a particular department so that they can take the action from there. Okay. Then we have given few flags for every item, whether you do the QC for this item or not, whether serial number is applicable for this item or not, whether the batch number is applicable for this item or not. So system is dynamic using this yes or a no. Okay, we can set the item or we can configure the system. क्या आप इस आइटम का इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं नहीं करते? लेट्स से अगर सर्विस आइटम है तो यहाँ पे नो होगा, बारकोड इस आइटम के लिए मेंटेन करना है नहीं करना, ठीक है, वारंटी इस आइटम के लिए है या नहीं है. ओके, ऑल दीज थिंग्स वी कैन मेंटेन थ्रू दिस फ्लैग्स, डिफरेंट फ्लैग्स. ओके, देन इफ लेट्स से अगर आप मटेरियल एक इन करते हैं किसी और यूनिट में और उसको इशू करते हैं किसी और यूनिट में, सो वी कैन डू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन. सो वी कैन अगेन सेट द फॉर्मूला और सिस्टम आपको फिर उसी अकॉर्डिंगली काम करेगा. सो दिस इज द आइटम मास्टर. नाउ आई एम कमिंग टू अगेन प्रोक्योरमेंट जो आप बोल रहे थे. ओके ओके. Okay. Then first, whosoever suppliers you have, we make a master for them. And Please repeat it again. आप बोल रहे हैं कि आपके पास जैसे 1000 आइटम है,
और 100 वेंडर हैं, तो कौन सा वेंडर कौन से आइटम में डील करता है, वो सिस्टम में कुछ मतलब बताएगा, या फिर वो आगे हमें याद रखना है? We can we can do the mapping for vendor and item. Once the item are mapped with the vendor, then it is easy to identify that which vendor is dealing in with which item. यहाँ पे सर आइटम को हम लोग वेंडर के साथ मैप कर सकते हैं, प्लस इनफैक्ट उसका हम लोग प्राइसिंग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उस कंपोनेंट, उस हर आइटम का कंपोनेंट का प्राइस कर मैप कर सकते हैं कि लेट्स से लास्ट वाला ये आइटम आपने किस वेंडर से किस रेट पे लिया था, तो सिस्टम विल शो यू दैट ऑल्सो। और जब आप उसका पीओ बनाएंगे अपने वेंडर के पास, तो जब आप पीओ बना रहे हैं उसका, तो जब आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे और आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट भी वहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप यूजर को राइट देते हैं कि वो एडिट कर सकता है उस रेट को, तो वो एडिट कर पाएगा, अगर नहीं देते तो वो नहीं कर पाएगा। सो जब मेरे एक बार वेंडर मास्टर बन जाता है, आइटम मास्टर बन जाते हैं, फिर मैं उसका मैपिंग करता हूँ उसके बाद। तो आप जब वो वेंडर, जब वो आइटम सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको वो वही वाले, जब वो वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो वही आइटम को दिखाएगा आपको, जब आप उसका मास्टर खुलेगा, जो आइटम में उसको डील करता है वो। गेटिंग इट? आगे चले सर। तो ये मैं मास्टर दिखा रहा था आपको, वेंडर मास्टर, जहाँ पे वेंडर का कोड आ गया, वेंडर नाम नेम आ गया। ठीक है, वो उस वेंडर को मैं ग्रुप, एक वेंडर का मैं ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ। उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से वेंडर्स आ रहे हैं वो मैं ले सकता हूँ, कौन से ग्रुप में है वेंडर, उसका जीएल क्या है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, उसका कौन सी कंट्री में है, किस स्टेट में है। ठीक है, उसकी स्टैचुरी डिटेल्स आ गई उस वेंडर के साथ। ठीक है, उस वेंडर में आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, बंदा कौन है इसको। अगेन इफ यू हैव मल्टीपल पीपल देयर, सो वी कैन अगेन नोट डाउन मल्टीपल पीपल, उस बैंक कौन से बैंक से डील करता है, वो किस लोकेशन में है। अगर आपकी कुछ और फील्ड्स हैं जो उसमें नहीं है, अगेन वी कैन डू द क्लाइंट स्पेसिफिक, अगेन वी कैन ऐड द फील्ड्स। ओके, सो दिस इज अगेन वन टाइम क्रिएशन व्हिच वी डू, व्हिच वी इंपोर्ट। सो आप जितने भी वेंडर्स हैं आप हमें एक्सेल में देंगे हमारे फॉर्मेट में, तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं वहां से। ओके, सो वंस दिस आइटम वेंडर इज क्रिएटेड और मैंने आइटम भी मैप कर दी जैसे आपने बोला, ठीक है, उसके बाद अगेन स्टार्ट फ्रॉम परचेज इंडेंट। ओके, सो फर्स्ट वी डू द परचेज इंडेंट। एक रिक्वेस्ट रेज होती है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे उसका इंडेंट का डेट क्या है, ऑटोमेटिकली स्टोर से हो रही है। अगेन यू हैव मल्टीपल स्टोर्स देयर, एक स्टोर मास्टर बनेगा जहाँ पे कौन से स्टोर से हो रही है, किस डिपार्टमेंट को जा रही है। ठीक है, फिर आप हर, जैसे आप प्रोजेक्ट बोल रहे थे, मैं हर इंडेंट कौन से प्रोजेक्ट के लिए में हो रही है उसको भी मैप कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। गेटिंग इट? लेट्स से मैं एक बार, सॉरी, नहीं नहीं, प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आप बोल रहे थे ना, आपके अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज आपको देखना है, प्रोजेक्ट मास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हाँ, तो अगर उसके पास लेट से वो एक ही प्रोजेक्ट अगर वो देख रहा है, तो उसको वही प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा इधर। लेट से मैं, तो वो तो सर उसको दिखाएगा ना शॉर्टफॉल क्या है, वो उसको शॉर्ट, वो उसको वहां से शॉर्टेज दिखाएगा। अगर चाहते हैं कि वो उसके वहां से उसके वो शॉर्टेज जो है जिस आइटम का, वो उसी आइटम के लिए रेज करेगा। और जो मैप उसको मैंने जिस प्रोजेक्ट के साथ मैप किया हुआ है उस एम्प्लॉय को, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट में उसका ऑटोमेटिक उसका प्रोजेक्ट वही नाम आएगा। अगर ऐसे उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं है और एक ही प्रोजेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ पे जब वो सेलेक्ट करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा इधर। ठीक है, हेलो, ओके सर। तो यहाँ पे बस एक बार इंडेंट रेज हो गया मेरा, ठीक है, परचेज रिक्वेस्ट रेज हो गई। देन वी हैव RFQ, then we have RFQ, again RFQ के थ्रू the vendor will get the link, जहाँ पे मैं सिर्फ, जहाँ पे उसको सिर्फ आइटम का रेट डालना है, जिस आइटम के लिए आप उसके पास एक RFQ भेज रहे हैं,
वो आइटम का सिर्फ रेट डाल के आपको वापस वो मेल पे आएगा, तो उसके मेल पे चला जाएगा। यहाँ पे वेंडर मास्टर में उसका मेल आईडी डला हुआ है, उस मेल पे ऑटोमेटिकली उसके मेल बॉक्स पे चला जाएगा, जहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ही बॉक्स होगा जहाँ पे वो आइटम का रेट डालेगा। ठीक है, अदरवाइज आइटम कोड है, आइटम नेम है, ठीक है, उसका यूनिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, पीआई क्वांटिटी कितने का इंडेंट क्वांटिटी था, और आप कितना उसको रिक्वेस्ट फॉर कोड आप कितना भेज रहे हैं उसको। ठीक है, इफ यू आर रेजिंग फॉर मल्टीपल आइटम्स देन वी कैन अगेन सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स देयर। ओके। नहीं, पोर्टल नहीं खुलेगा सर वेंडर के पास। वेंडर के पास सिर्फ एक उसके मेल बॉक्स पे लिंक जाएगा। जैसे लेट से मैं एक जूम आईडी क्रिएट करता हूँ, आपके पास भेज रहा हूँ, तो आपके पास जूम का लिंक जा रहा है, लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो पेज खुल जाता है ना। तो ऐसे ही उसके पास सिर्फ लिंक जाएगा, यूआरएल जाएगा, उस यूआरएल पे वो क्लिक करेगा तो वो उसके पास सिर्फ रेट को डालने का ही ऑप्शन होगा उधर। आइटम दिखेगा उसे और क्वांटिटी दिखेगी उसको, उस आइटम का क्या रेट है वो वहां डालेगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मल्टीप्लाई में कितनी क्वांटिटी है। नहीं डील करता तो नहीं भेजेगा आपको वापस को। वैसे गलत जाए, मतलब वैसे तो गलत जाएगा। वेंडर को मैं मैप करूंगा उसी के पास जाएगा वो, जिस वेंडर का मास्टर में ईमेल आईडी डाला हुआ उसी के पास जाएगा लेट से, बट फिर भी तभी हम लोग ने अपने इंटरनल में ही उसको हर चीज में अप्रूवल सिस्टम दिया हुआ है ना। मैं जब आरएफक्यू रेस कर रहा हूँ इंटरनली, ठीक है, वो मैंने आरएफक्यू रेस किया, वो आपके पास एक अप्रूवल के पास भी आ सकता है। तो लेट से मैं उसको 5 लेवल तक हम लोग अप्रूवल के लिए जा सकते हैं अपने सिस्टम में। अब वो जब मेरे यहाँ से 2-3 बार अप्रूव होकर जब जा रहा है तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि सही वेंडर के पास जा रहा है। ठीक है सर। Okay. Then you get the or receive the purchase vendor quotation. Then system will compare different quotations you have received. Okay. So vendor one, vendor two, vendor three. Okay. इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उस वेंडर वन का, वेंडर टू का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वेंडर थ्री का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, उसका लीड टाइम कितना है, ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स वी कैन कंपेयर, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी रेज द परचेज ऑर्डर। तो हम लोग परचेज ऑर्डर लेट से किसी वेंडर के लिए हम लोग डायरेक्ट पीओ भी क्रिएट कर सकते हैं, और किसी वेंडर के लिए अगर सो मैंने ये मैं आपको ये कह रहा था कि उसके बाद हम लोग ना पीओ डायरेक्ट भी रेज कर सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। इन जिस किसी हो सकता है किसी वेंडर को आप सीधा पीओ बना के दे रहे हैं, या किसी वेंडर के साथ पूरा अगेन आरएफक्यू और वेंडर कोटेशन वो सब हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन अगेन केस टू केस बेसिस वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ पे जैसे सिस्टम में पीओ जो मैंने खोला, ऐड करता हूँ, तो इट इज शोइंग डायरेक्ट पीओ बनाना है, या फिर मैं पीआई के परचेज इंडेंट के बेसिस पे कर रहा हूँ, या फिर कोटेशन की बेसिस पे मैं पीओ बना रहा हूँ। तो आई कैन रेज द पीओ डायरेक्टली ऑल्सो। तो पीओ में पीओ डेट आ गया, किस डिपार्टमेंट से जा रहे हैं, वेंडर का मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम वेंडर रेफरेंस डेट सब आ गया। उस प्रोजेक्ट के साथ मैं किस प्रोजेक्ट के लिए मैं बेसिकली पीओ रेज कर रहा हूँ, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट मास्टर के साथ उसको मैं मैप करूंगा यहाँ पे आपके बेसिस किस बेस में, फिर किस आइटम के लिए मैं पीओ बना रहा हूँ। अगेन आई कैन सिलेक्ट आइटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने पीओ बनाया हुआ है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, पीओ डेट आ गया, किस डिपार्टमेंट से है, किस वेंडर को दे रहा हूँ, वैलिडिटी फ्रॉम वैलिडिटी टू, वेंडर रेफरेंस नंबर, डेट डेज 19, बिल फ्रॉम कहाँ से बिल, और ये शिफ्ट शिफ्ट फ्रॉम क्या है, टोटल वैल्यू, ये आइटम्स आ गए यहाँ पे।
क्वांटिटी के लिए है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा। लास्ट प्राइस में आपसे बात कर रहा था, किस प्राइस में मैंने ये आइटम लिया था पहले। ठीक है, कोई डिस्काउंट या नहीं है, आप अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, फिर जीएसटी आ गया, फिर आपका टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे। तो दिस इज द पीओ। ठीक है, इसका प्रिंट कैन बी अगेन एज पर योर फॉर्मेट। सॉरी, ओके। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं इसमें जो मॉड्यूल, सबसे पहले मैं देखूंगा मॉड्यूल हमारा आ गया, पूरा परचेज आ गया, आपका इन्वेंट्री आ गया, आपकी मल्टीपल साइट्स आ जाएंगी जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो गए, अकाउंटिंग भी हो जाएगा, है ना। और आपका सब वहाँ पे चला गया सारा कंजम्पशन उसका, और बिल ऑफ मटेरियल। कितने यूजर होंगे सर? नहीं, वेंडर यूजर नहीं हो सर, वेंडर कैन बी अनलिमिटेड, कस्टमर्स कैन बी अनलिमिटेड, आपके आइटम्स कैन बी, एसकेयूज कैन बी अनलिमिटेड, सो नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट। यूजर से मेरा मतलब है कि हाउ मेनी यूजर्स विल बी डूइंग और विल बी यूजिंग दिस ईआरपी फॉर द डेटा एंट्री पार्ट। 50, मतलब 50 आपके, मतलब कि हर, आप कह रहे हैं कि हर साइट्स में आपकी कितनी साइट्स होंगी, मतलब ऑन एन एवरेज 20 साइट्स। तो हर साइट में आपके यूजर्स हो गए, जैसे दो भी पकड़ू मैं, तो 40 ही हो गए, 50 ईयर्स ले गए थे। ओके ओके। सर इसमें मेरे को आप 2 मिनट देंगे सर, मैं थोड़ा कॉस्टिंग करके आपको बताऊं। Happening कि we can have multiple dashboards, so this is again one view of a dashboard। क्या आपको देखना है, जैसे परचेज का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले लेट्स से प्रोजेक्ट मास्टर बनता है, जिसमें अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे आप 20 प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं, सो देयर विल बी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, अगर मैं एक प्रोजेक्ट को देखूं, मैं इसका डिटेल देखूं, तो बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट का डिफरेंट कोड है, प्रोजेक्ट टाइप पूछ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, कब एंड होना है, इसका टेंटेटिव डेट क्या है, कौन सी लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, प्रोजेक्ट को कौन होल्ड कर रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, सिटी में है, पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जो हमें जो लेट से आप एक कॉस्ट निकालेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगी आप लोग के एक प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एक्टिवेटेड है अभी नहीं है जो भी। सो बेसिकली दिस इज वन टाइम मास्टर फॉर एवरी प्रोजेक्ट व्हेन यू रेज और व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो दिस इज अ वन टाइम जॉब। उसके बाद व्हेन यू गेट द इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बेसिस पे जब आप बेसिकली, तो जब आप लोग अपनी कॉस्टिंग निकालते हैं, सो ये इसको हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं सर, बीओक्यू। सो बीओक्यू नंबर आ गया, बीओक्यू किस डेट को ये बना है, किस सेल्स ऑर्डर, ये वैसे सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे है, मतलब ये डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। कुछ सेल्स ऑर्डर के बाद बनाते हैं, कुछ सेल्स ऑर्डर से पहले बनता है। तो यहाँ पे किस प्रोजेक्ट के लिए मैं बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, प्रोजेक्ट होल्डर आ गया, ये इसकी किस पीओ क्वांटिटी कितनी, वन एक क्वांटिटी के लिए बना रहा हूँ मैं ये। तो यहाँ पे बेसिकली इसका प्रोडक्ट का नाम आ गया, इनकी अपनी आगे लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, जो भी इनको मतलब फील्ड चाहिए है वो यहाँ पे ही आती हैं, थिकनेस क्या है, वो फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगी। ठीक है, मटेरियल टाइप क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो कॉस्टिंग है वो यहाँ निकलेगा। मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, ये अभी आपके अकॉर्डिंग बना नहीं हुआ, मेरे को थोड़ा सा टाइम देंगे ना, तो आई कैन मे बी आई कैन शो यू इन द नेक्स्ट मीट, अगर हम लोग एक बार मिलते हैं और यहाँ पे, तो मैं आपको एक बार बिल ऑफ क्वांटिटी थोड़ा आपके हिसाब से एक बार मैं बना सकता हूँ। दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया